जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। गुड मॉर्निंग। आज के HAS 2024 प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। काइंडली मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि आप लोगों तक ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियरली आ रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गीतांशु, कनिका, इकोनॉमी न्यूज, भावना, गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए, अंशुल, शालू भारद्वाज, सुमन बंसल, गुड मॉर्निंग ऑल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए, ग्रेट, थैंक्स। So let's begin the session. The first question for today is, consider the following statements. Risk-weighted assets are used to determine, risk-weighted assets are, just give me a moment, there's some problem. Yeah, risk-weighted assets are used to determine the minimum amount of capital a bank must hold in relation to risk profile of its lending activities and other assets. Second, capital requirement is based on a risk assessment for each type of bank asset. So you're supposed to mark the correct statement. All right, good morning Marisha, Meenakshi, Pushpa. चलिए ठीक है, great. All right, so let's wait for some answers to pour in. देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है यहाँ पे जो बोल रहा है रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है। अब इसमें बैंक के जितने भी एसेट्स हैं, बैंक ने जो भी लोन्स दे रखे हैं, बैंक ने और भी कहीं अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो ऑल दोज एसेट्स एंड द एसोसिएटेड रिस्क, this is taken into consideration while RWA is decided कि किस बैंक का कितना रिस्क जो है, किस एसेट पे कितना उसका रिस्क है, राइट। तो अलग अलग बैंक के एसेट्स जो भी हैं उन सभी का इंडिविजुअली कितना रिस्क एक्सपोजर है, मतलब वो एसेट कितना जो है नॉन परफॉर्मिंग कल को हो सकता है या एक बैड एसेट में कन्वर्ट हो सकता है, उन सभी के लिए उनको वेट्स असाइन किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क that entails or that is associated with a particular asset of the bank, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो बोल रही है कि it is used to determine the minimum amount of capital that a bank must hold in relation to the risk profile of its lending activities and other assets is absolutely fine। क्यों? क्योंकि उतना कैपिटल जो है वो रखेगा so that it has a cushion, you can say, in times of adversity, in times of any of the assets टर्निंग सोर और टर्निंग बैड, राइट। तो उस वक्त कुशन रहे, ऐसा ना हो कि बैंक को एकदम से उस शॉक को बेयर करना पड़े एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द बैंक टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल। So first remains correct. Second, it is based on a risk assessment of each type of bank asset. Yes, absolutely, each type is taken into consideration, ठीक है। तो आंसर would become both 1 and 2 and आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। कुछ आंसर्स मुझे ए दिख रहे हैं, कुछ सी दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के आंसर सही भी हैं। चलिए, ग्रेट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF? First, it is an intergovernmental body. Second, India joined with observer status in 2006 and became a full member in 2010. And third, FATF plenary is the decision-making body of the FATF. So you're supposed to mark the correct statements regarding the Financial Action Task Force, which was pretty much in news recently. Capital requirements each bank. Yes, भावना, हर एक बैंक के लिए हर एक एसेट का कितना रिस्क है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, so we have अक्षय, गीतांशु, अंशुल, भावना, पुष्पा, जिन लोगों के आंसर्स आई कैन सी इन द कमेंट सेक्शन। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू मेंशन द क्वेश्चन नंबर अलोंगसाइड द आंसर। देखिए, जो पहली स्टेटमेंट है कि FATF इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, यस इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। व्हाट डज इट डू? keeps a check on what kind of funding finances are being mobilized and maybe being used for terror activities or laundering activities, right? It is an intergovernmental body. India initially joined as an observer, later became a full-time member, so that is also correct, in 2010. And lastly, another important fact,
that is FATF plenary, which is the topmost or the pinnacle of FATF in decision making. ठीक है, तो आपका आंसर will be 1, 2 and 3. ठीक है, हाँ, absolutely, yes Bhavna, you are absolutely right. चलिए, so let's move to question 3. Which of the following statements is or are correct? First, non-banking financial company is also referred to as shadow banks. NBFC is also referred to as shadow banks. Second, the deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is available to depositors of NBFCs, unlike in the case of banks. तो NBFC के कॉन्टेक्स्ट में दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि which is correct. Yes, I would request you all, please mark your answers in the comment section. Okay. यार आंसर्स ऑप्शंस मार्क करके बताओ ना, A B C D, 3A B और C और D, व्हाट इज दैट? व्हाट इज दिस ओनली वन थिंग? ऐसे मार्क करोगे OMR में? ऑल राइट, देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ओरिजिनल एक्ट था 1956 का. They are, not supposed to accept deposits, unlike banks. They are not supposed to maintain reserve ratios, unlike banks. They are not under the scrutiny of, you can say, Reserve Bank of India, more or less. ठीक है, डिपेंड करता है किस एरिया में ऑपरेशनल है NBFC, वहां पे उस रेगुलेटर के अंडर रेगुलेशंस आती हैं इसकी. एंड इंपॉर्टेंटली DICGC वाली जो बात हो रही है कि DICGC का गारंटी जो है वो बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, NBFCs के लिए एप्लीकेबल नहीं है, which means the second statement would be incorrect. First is correct. They are also referred to as shadow banks, which means correct अगर पूछा है तो आंसर would be only one, that is option A. ठीक है, I hope that is understood. C आंसर नहीं होगा, कई लोगों के C आंसर्स दिख रहे हैं मुझे. आंसर टू क्वेश्चन 3 is A. Right? चलिए, moving to question 4. Which of the following statements are correct? पहला, Center for Advanced Financial Research and Learning, CAFREL, is an independent body established by the Reserve Bank of India. Second, it conducts research and provides insight into India's financial sector, including NBFCs. So you're supposed to mark the correct statement. Yes, guys. हाँ, absolutely, Vikrant. Up to 5 lakhs, DICGC gives you insurance on the money which you deposit in the bank. Beyond that, there is no guarantee. If the bank fails, your money may or may not be, returned. चलिए, Marisha says C, Anshul says C. हाँ जी, बाकी लोगों के आंसर्स कहाँ हैं? ओके, एक और टास्क है, कमेंट करके आप लोग ये भी बताओगे, कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि जो CAFRAL है, कैफरल है, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इज इट जस्ट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव? विच आउट ऑफ दीज, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल वन लाइनर, कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो इनमें से टाइप करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा आंसर इसके साथ साथ. ठीक है, ओके, वी हैव धीरज ऑल्सो. गुड मॉर्निंग धीरज. चलिए देखिए, यहाँ पे पहली बात क्या हो रही है, फर्स्ट थिंग इज, और फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि कैफरल जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है which works under the ambit of, you can say, Reserve Bank of India. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा, it conducts research and provides insights into India's financial sector, including the non-banking financial companies. Yes, so both are correct. Your answer will be option C. No, पूछा क्या? Correct. Sorry, this shouldn't be D. This should be C. ठीक है. All right, Namisha is saying executive. ठीक है, ठीक है, perfect. Yes, executive, absolutely.
ठीक है, जो लोग लाइव हैं वो लोग तो भी कमेंट करके बता चुके हैं, जो लोग बाद में देख रहे हैं वीडियो को वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो विच बॉडी इज दिस। चलो ग्रेट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्शन टेकन टू लेसन द टैक्स लायबिलिटी एंड मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स इनकम एंड इज लीगल। फर्स्ट। सेकंड, टैक्स इवेजन इज फ्रॉडुलेंट एंड एन इलीगल अप्रोच। तो यहां पे आपको चूज करना है विच इज द इनकरेक्ट वन आउट ऑफ दीज। हाँ, नॉन प्रॉफिट एग्जीक्यूटिव, ठीक है अंशुल, परफेक्ट। फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया ये होता है जहां पे यू प्रोवाइड फॉर सर्टेन कंसेशंस ऑन ड्यूटीज, ठीक है। इकोनॉमी न्यूज नाम नहीं मुझे पता, ये इकोनॉमी न्यूज नाम से एक एस्पिरेंट है, ये पूछ रहा है फ्री ट्रेड एरिया। देखो जहां पे आप कस्टम्स की वेव ऑफ कर दो, टैक्सेस को कम कर दो, ठीक है, दैट इज अ फ्री ट्रेड एरिया। अब क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट यू आर गेटिंग इनटू, ठीक है। जिसमें हम फिर हम वी टॉक अबाउट द preferential trade agreements, the free trade agreements, which are the subtypes. चलो कमिंग टू क्वेश्चन 5। हाँ, टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्शन टेकन टू लेसन टैक्स लायबिलिटी। हाँ बिल्कुल, के टैक्स जो आप पे कर रहे हो वो जो अमाउंट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, एब्सोल्युटली। एंड मैक्सिमाइज आफ्टर टैक्स इनकम, बिल्कुल, अगर टैक्स जो पे कर रहे हो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली इट वुड लीड टू an increase in your after tax income. जैसे मान लो maybe if we take this example that you have a per month salary of rupees 1 lakh and maybe somewhere you are paying tax rupees 50,000 annually, ठीक है, just an example। तो अगर आप कुछ benefits या कुछ provisions की मदद से इस liability को reduce करके 30,000 ले आते हो तो आपने 20,000 जो है अपनी after tax income increase कर ली, right? So that is first is correct and it is legal. Yes, it is pretty much legal. Why? कि सरकार ने जो टैक्स लॉज में प्रोविजंस दिए हैं उसी को यूज करके, उसी का स्मार्ट यूज करके यू कैन से यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज योर आफ्टर टैक्स इनकम, यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस योर टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। हाँ लीगल है ये। दूसरा बोल रहे हैं टैक्स इवेजन इज फ्रॉडुलेंट एंड इलीगल अप्रोच। हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है। टैक्स इवेजन, टैक्स इवेड करना मतलब है कि यू आर सपोज टू pay the tax, that liability of paying the tax was on your head, you did not pay, right? That means you are basically on the wrong side of the law। कि कानूनी रूप से देखा जाए तो बनता था टैक्स पे करना, कर देना या कर अदा करना, पर आपने नहीं किया, राइट? सो बोथ आर करेक्ट हियर, आंसर वुड बी डी, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट, ठीक है। लीगल वर्ड में कैच लगा था, ओके हाँ कैच तो था उसमें, बट यू शुड हैव बीन केयरफुल के बोल क्या रही है स्टेटमेंट। चलो नॉनदलेस मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रेज्ड रुपीस 5,000 करोड़ थ्रू द फर्स्ट इशू ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स। सेकंड, द प्रोसीड्स ऑफ दीज बॉन्ड्स आर यूज्ड ओनली फॉर एनवायरमेंटली कॉन्शियस क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोजेक्ट्स। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हाँ नमीशा, यस लीगल है बच्चे। टैक्स अवॉइडेंस तो देखो इट इज लीगल है ना, उसमें आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट यूजिंग द प्रोविजंस स्मार्टली सो दैट योर टैक्स लायबिलिटी गेट्स मिनिमाइज्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्यों जाते हो, इसीलिए है ना, सीए का सबसे बड़ा खेल ही यही है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेटमेंट्स नाउ। तो बिल्कुल पहला जो इशू है ग्रीन बॉन्ड्स का, उसके थ्रू सरकार ने 5,000 करोड़ रुपीस रेज किए हैं, दैट इज करेक्ट। सेकंड, कि दीज बॉन्ड्स आर यूज्ड ओनली, या फिर कह लो द मनी ऑफ यू नो द मनी और द प्रोसीड्स रेज्ड थ्रू द इशुएंस ऑफ these bonds are used for environmentally conscious green sustainable projects, so that means second will also be correct। तो दोनों सही है, तो आपसे पूछा करेक्ट है, दैट मींस आंसर विल बी बोथ 1 and 2। सिक्स्थ का आंसर डी क्यों दे रहे हो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल। इकोनॉमी न्यूज का ठीक है आंसर, एंड बाकी मुझे किसी का नहीं दिख रहा ठीक आंसर, अनफॉर्चुनेटली मे बी यू हैव नॉट revised the things or you did not see the question properly। चलिए moving to question 7।
Tax evasion is the illegal act of not paying owed taxes to the government by underreporting income, hiding money offshore, inflating deductions to reduce tax liability, या फिर D, all of the above. Okay, Akshay says green word skip हो गया. Okay, fine. Please be careful from the next time. हाँ जी, देखिए, या तो आप अंडर रिपोर्ट करो, या ऑफशोर पैसे को स्टैश करके हाइड करो, या फिर आप आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करो डिडक्शंस को, कुछ भी करो, दैट इज ऑल इलीगल. दैट मीन्स आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, कि अगर किसी भी, देखो द पॉइंट इज आइदर वेज यू आर कंसीलिंग योर इनकम, आइदर वेज यू आर हाइडिंग योर ट्रू इनकम, एंड यू आर बेसिकली इन वायलेशन ऑफ द लॉ. ठीक है, तो सारे के सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. यहाँ परफेक्ट, यहाँ पे नियर यूनानिमिटी दिख रही है मुझे. आई कैन सी डी एज द चॉइस ऑफ मोस्ट ऑफ यू पीपल. चलिए, मूविंग टू क्वेश्चन 8 नाउ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर शिमला प्लानिंग एरिया 2041 was published in 2022. And second, Supreme Court approved the Shimla Development Plan 2041 that is aimed at regulating construction activities in Shimla. तो आपने बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है. And we have already seen the kind of catastrophe which Shimla has gone through during those 3 days incessant rainfall, है ना. सिर्फ शिमला तो चलो नहीं, बट और भी बहुत जगहों पे था. But Shimla had paid very dearly for that kind of, I would say, unplanned and massive urbanization that has happened in the city. Economy News says no idea. Then, my dear friend, you are belying your name itself. You have kept your name as Economy News, and this was very much in news, and you are having no idea about it. चलो ठीक है, let's talk about the statements. देखो, ये प्लान जो है बिल्कुल 2022 में पेश किया गया था सरकार के द्वारा. इसके ऊपर कुछ इशू हुआ था जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा पहुंचा. एंड रिसेंटली, अभी पिछले हफ्ते की न्यूज थी कि शिमला प्लान 2041 को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. इट इज गिवन अ ग्रीन लाइट, इट इज गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू द 2041 शिमला डेवलपमेंट प्लान. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है, ये पता होना चाहिए यार. इफ यू आर एमिंग फॉर HPPSC, HAS और इवन अलाइड, तो ये पता होना जरूरी है. चलो, मूविंग टू क्वेश्चन 9. इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 was released by which of the following? Union Ministry of Finance, Center for Advanced Financial Research and Learning, Center for Monitoring Indian Economy, या फिर नीति आयोग. ओके, नमीशा says NGT ने भी इस केस में they have also looked into. All right. हाँ जी, यस. इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 किसने रिलीज किया है? अरुणा सेज ए, शालू इज सेइंग डी, शालू सेइंग ए, भावना सेज डी, भावना सेज बी. ओके, भावना के दो ऑप्शंस आ रहे हैं एज आंसर. विक्रांत इज सेइंग सी. ठीक है, यहां पे देखिए, इट इज नाइदर नीति नॉर CMIE नॉर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इट इज कैफरल, सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग. बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई थी. राइट. चलिए, आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हाईलाइटेड द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, that is PM Ajay. So PM Ajay is a comprehensive scheme amalgamating 3 centrally sponsored schemes including Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana, Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub-Plan, and third, Babu Jagjeevan Ram छात्रावास योजना, BJRCY. तो आपको बताना है कि कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं सबज्यूम या अमेलगमेट हो गई हैं अंडर PM Ajay. So select the correct statements using the codes below 132312 123. Okay, Aruna, Marisha,
नमीशा, गीतांशु, ठीक है, ग्रेट. सो दैट मीन्स you're learning things and that is good. चलो ठीक है, perfect. Yes, absolutely all of these schemes है ना, as recently was announced by the यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के इन सभी स्कीम्स को अमेलगमेट कर लिया गया है एंड नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना. तो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. ठीक है, यस. अच्छा, वन थिंग गाइज, वी हैव मोर देन 20-25 पीपल हु आर लाइव यार, लेकिन जो लाइक्स हैं वो तो कम है. दे आर इवन नॉट 10. एटलीस्ट हिट दैट लाइक बटन बिफोर यू गो अवे एंड लेट मी नो. वो जो कैफराल वाला क्वेश्चन था अगर किसी ने अभी तक नहीं लिखा है तो, कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी. ठीक है, चलिए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. विल सी यू इन सम अदर सेशन. अंटिल देन ऑल ऑफ यू कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड स्पेशली इन द वेक ऑफ द कोल्ड वेव, है ना, ध्यान रखिए अपनी तबीयत का, अपनी सेहत का, रिवाइज करते रहें एंड फिर मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय हिमाचल, जय भारत. बाय बाय एंड टेक केयर.